First of all, warm good evening to each one of you in this webinar where we are going to discuss uh, various manual how we can automate our office work. Want to remove the manual task from your GST filing. So we are learning here the automation, and the seminar will provide a holistic idea on how one should think about the automation in each organization, and also a roadmap on the how to implement the idea into a practical life situation. And we have with us our eminent speaker and uh, good fellow chartered accountant, Mr. Pranav Pratik Tulsianji. Pranavji, welcome to you on this webinar. About him, I would like to brief shortly his rank holder throughout CPT All India Rank 1, in IPCC rank 1, and CA final rank 5. So rank holder in throughout CA career, and has done his articleship from Big Four and currently working in Indian Oil. So it is the brief profile about Pranav, and he's expert in digital domain experience and various automation work he has completed. So without taking much of your time, today we are going to learn various automation in the GST filing, and we will learn so many things by the end of the 1 hour. And I request everyone to download the background material. And if you have any query, kindly post in the chat box so that we can make it the fruitful discussion. One request, kindly mute yourself, various unmute is there, so kindly mute yourself so we can proceed further. I request Sure. Okay. Thanks. Thank you, Sumit sir, for the introduction. So yeah. So let's start. I will start by sharing my screen. And one thing which I would like to stress upon, which Sumit sir said, that this is a webinar. One thing is we will learning about tool, but the most important aspect is the holistic way of how we should look towards automation. We being a CA, this is one thing that we should always have in the back of mind, that automation is something that we should be thinking of. कि हम कैसे कर सकते हैं. So, Mr. Just a small confirmation. My voice and my screen is visible. It's clear. Yes, perfect. Perfect. Okay. Thank you, sir, for the confirmation. I'll just start. And okay, so first of all, thanks to the team CASA for the support and for the assistance in organizing the webinar. So I'll just briefly mention about me, sir has already mentioned. So I'm working in Indian Oil as a account officer, and currently here I'm looking after the tax return profile. I look after the GST too. And for last like 1.5 years, I've been working towards how automation can be inbuilt in our financial domain and how we can use automation to make our tasks easier. So in that way, I've been working towards automation of finance, and this academic already sir has mentioned. So along with me, I would like to mention that you have heard this efficient corporate. You have got many emails and I've got many DMs as well in your WhatsApp that efficient corporate is organizing a webinar. So what efficient corporate? So just to give a whole, it is a platform which is working towards anything can be automated. So the tagline is that anything and everything which you do can be automated. So this is, it's not that some might not agree to this thing, but this is the thing which is working. It's a platform to learn, build, and share. So when we talk of learn, it is about learning from the free video resources which are available, new materials which are available, and we can there's a community of efficient corporates through which we can interact and we can learn about automation. Because it's a new domain for all of us, and no one of us is a software engineer or something like that who knows about how to implement technology. So in that way, it's a very new thing. So it's a community where you can learn about it and build. So what build is that? It's regarding building your own tools. Whichever tools you need in your office to make your work easier, you will self-assess and then you will discuss within the community, and you can think of how we can make those tools. And in that way, community will provide you a support that how you can go around making tools. And lastly thing is sharing. So when you have made your tools, or may not be tools related to some coding or high technology related stuff, but even simple macro related things. If there is some something you have made it macro or you have done, so even that you can share, and you can
tell to everyone that how it has made your task easier using this macro or Excel thing. So in that way you can share, and then in that way it is the beneficial for the entire community as a whole. In that way, this is Excel Corporate. So I would the first step which I really recommend is to join the community. We are like community is available on the most this platform: LinkedIn, YouTube, WhatsApp, and Discord. So Discord is something which is quite new for us. But it's also available on these many platforms. So there you can search simply Efficient Corporate and you can join the community whichever you are more active on. In that way, you will get regular updates on the technology aspects, and you can discuss the LBS, learning, building, and saving, that you can do. Discord is a bit new community or new app for us. We will be discussing about it at the later part, not now. So just one line I would say that Discord is the future of group communication. Just like we have our WhatsApp group for our CA form, every CA form has a WhatsApp group, or even students have the WhatsApp group for their study. So in that way, the Discord is just an advanced level of a WhatsApp group, and it's a very strong and powerful tool of communicating within groups. We will be discussing about it later on, not much. So let's directly come to today's agenda, what we are here for. So we are here for automation in GST. So we'll be there will be few topics, specific topics that we'll be discussing of how that thing can be done. Okay, so if someone could just mute so that there's no disturbance. Okay. So we were mentioning that there were few agendas which we have for today. One is the downloading of the bulk GST returns, GSTR 1 and 2 with JSON to Excel conversion. Now it might be that you all are using some tools or something like that for that, but we'll be seeing how this can be done in some easy manner. And one is the 1-by-1 conversion, next is the bulk conversion. If you have like 50, 60 or 100 JSON files of different clients and you want that to get converted into Excel at once, how that can be done. Merging the monthly GSTR 2 and GSTR 2B thing, the Excel file, how to merge this Excel file, reconciliation of ITR with GSTR 2 and GSTR 2B. With the latest amendment, the GSTR 2B has become like more relevant as of now. So that we'll see how reconciliation can be done. And next, last is the bulk GST validation. If you have like 2000 or 2500 GSTs, how you can validate which one is right and which one is wrong, which one is valid and which one is not valid. And lastly, we have an open query session for all. So this will be the today's agenda. So now the first thing that we all get in our mind is, okay, we are talking about some tools. So what will be the cost of these tools? So what is the cost? We have to pay something. Is it free or what? So it has a cost. Let me tell you at very front, it has a cost, and the cost is you have to give your time, you have to give your willingness to learn, and you have to give your effort to develop this skill. Because it's not a something, even we use Tally or something. When you use Tally for the first time, you have to give your time to learn about it. So in that way, there's no any paid software or paid app over here. We are talking if everything is free tool and it's like open for everyone to learn, but you have to invest your time to learn about it. So I would want you all to give your time, willingness, and effort to learn about these tools. And that's all we need to learn about this. So let's start. So first I will be starting with the one which is downloading the bulk GST returns. So now most of you might be knowing about it, and maybe some of you don't, but the tool which I'll be talking is the Chrome Okta GST extension. So I hope you are able to see. If you write Okta GST Chrome extension, it's a very popular tool and it has been in the market for long. So most of us may be using it. So in that way, you can the link for the extension, you can just simply type Okta GST Chrome extension in the Google Chrome and you will get it. If you want, the link can be also given in the chat box. So Subham, you can take care of that. You can give the link in the chat box if someone wants to download. So you simply go to Chrome, go to this link, and you can just write add to Chrome. In my remove from Chrome is coming because I've already added it. So if in your case, if you're not added, it's come add to Chrome. Now, you can simply, whenever you are logging into any client GST portal, this blue pop-up will come. If it doesn't come, then you can just click on this and you can enable it from here. Okay, so once you've enabled it, it will come over here, and once you download, you click on it, it will say, please open return dashboard. So just go to return dashboard. And now if you click on it, so there are few returns which it can give, like GSTR1 JSON file. Like many times, it is required, like if you want to file for a refund or anything, if you want that in April, May, June, what invoices you had filed. So that time you need that entire JSON or entire GSTR1, not the PDF, but the JSON.
it has the invoice wise details. Okay. Similarly, you can just click on download. So look, if you just click on download, now it will download each and everything. All the JSON file it will download in a zip file. You can just unzip it and you'll get all the JSON files. So in that way, it is very easy. Now, what else we get? We can get GSTR to a JSON. We can get GSTR to a Excel file. You can just go to this. You can click which year Excel you need. Now 21, 22. Now, even if a client is like 17, 18 or old client, then you get for entire year. Okay, you get from 17, 18. It's not only कि 20 से किसका मिलेगा, सबका मिलेगा. So GSTR to Excel you can just request simply 2B. For 2B you just need to go to 2B of any particular month. Okay, so you'll just click on a particular month. Now it may be that many of you already know. So if you someone who have known for this for the first time, you can write on the chat box that you knew this, you didn't know about it, and you have this is a new thing for you. You can mention it. So in that way, you can go to 2B. I've opened a 2B of the client. Now you can go to 2B and you can click on refresh. In that way, you will get the JSON file. Okay, so you can just click on download all, and the JSON file you will get in your now if I click on download all, everything will get downloaded. तो आप अपना इसमें देखोगे download में, तो आपको यहाँ सब download मिल जाएगा. ठीक है, just now downloaded 16/1/1911. So just now it got all have got downloaded. So this was one small tool कि आपका ये how can you download the bulk GST return. Okay, now we'll go to some other agendas, like how to convert the JSON into Excel, how to merge, and how to do reconciliation. So for that, we'll be using a Python module which is Apport GST. Okay, so we will show you how it can be easily be done using that Python tool. So now I know you all will be having what is Jupyter Notebook, is it safe or not? Will my office system support it? How means is it a hardcore coding? Can we learn coding? And all this we have, and I'm very genuinely I know that these are very genuine questions. So just keep this question aside. We'll address each and every question at the end of the webinar. Okay, that we will discuss. But if you have any question other than the one which is mentioned on the screen, अगर इसके अलावा कोई question है, then you can definitely note it down on a piece of paper, and then we will discuss that question as well at the end. Okay. Now just some of them. Pranav, kindly. Yes, sir. बताइए. You are muted actually. Still one person is unmuted. Kindly allow the option. अच्छा ठीक है. I think they will mute by themselves as well. Okay, ठीक है. So to continue, all these questions will be addressed at last. But इसके अलावा किसी का कोई भी question है, then you can note it down, and we will write down the questions, and then we will have or you can even chat box में लिख सकते हो. हम last में सब discuss करेंगे. Any questions that you have. So I just for now I would want कि ये ना just observe carefully whatever is there on the whatever get how to download जिम्मेदारी. ठीक है. So JSON to Excel conversion is there. The next thing is one is the single means वो एक एक करके कैसे convert होगा वो हम दिखाएंगे. Then we'll show कि bulk में अगर आपके पास 10-12 JSON है या 20-50 JSON है एक साथ कैसे convert होगा. Then we'll say monthly GSTR 2A को कैसे merge कर सकते हैं. So I just want you to observe जो भी हम दिखाएंगे that you just observe and evaluate at your end कि आपको कैसा लग रहा है कि easy है, hard है, whether you can do it or you can use it or not. Just evaluate कि वो whether it's easy or hard. Lastly, bulk GST validation. All these things we will say one by one. And ठीक है. So these 6 things are there, and at the end we will have our query session. So let's open Python and let's watch. ठीक है. So here Shubham, are you there? Yes, sir. Okay, so Shubham, you can share your screen and you can just get us a walkthrough of all these things which you have mentioned. हम start उसी से करते हैं GSTR1 JSON to Excel. आप स्क्रीन शेयर करना. पहले आपको बंद करना होगा. ठीक है, आप देखो एक बार अब आ जाऊंगा. Okay, so I guess everyone is able to.
तुम थोड़ा जूम भी कर लो वो जुपिटर नोटबुक को। ठीक है, yeah, it is feasible. ठीक है, so you can just say that the module which we said it was FCOT GST. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये हमने बस लिखा है that first we need to import the module the FCOT GST. so उसका वर्जन इज 1.6.2. so how we will import is by using this pip install FCOT GST. अब ये जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये एक जुपिटर नोटबुक है. so this is the platform to write Python code. जैसे हम एक्सेल का फॉर्मूला लिखने के लिए हमें एक्सेल ओपन करना पड़ता है, वैसे पाइथन का कोड लिखने के लिए हमें जुपिटर नोटबुक ओपन करना पड़ता है. तो ये जुपिटर नोटबुक है एंड इट्स नॉट वेरी टेक्निकल. लास्ट में डिस्कस करेंगे हाउ इजीली ये आप अपने सिस्टम में भी आप ये ओपन कर सकते हो. ठीक है, सो ठीक है, तो कम टू दिस GST1 JSON टू एक्सेल, हमारा सेकेंड एजेंडा था. तो हियर वी आर यूजिंग द फंक्शन GST1 टू एक्सेल. ठीक है, तो हमें ये जो फंक्शन है उसमें हम ऐसे कॉल करें. आपको जो IN11 दिख रहा है ना, ये 2 लाइन, दिस इज अ पाइथन कोड, ये 2 लाइन है. तो फ्रॉम GST इंपोर्ट GST यूटिलिटीज एज GTU. शुभम थोड़ा सा स्क्रीन तो छोटा करना. हाँ अब थोड़ा ठीक है, थोड़ा और छोटा कर दो काफी. हाँ ठीक है, अब ठीक है. तो हमने ये लाइन एक लिखा फ्रॉम GST इंपोर्ट. जैसे आप भी जब जुपिटर नोटबुक अपने ऑफिस के सिस्टम में डाल दोगे डाउनलोड करके, देन आपको एक जगह मिलेगा लिखने का. आपने वहां लिखा फ्रॉम GST इंपोर्ट GST यूटिलिटीज एज GTU, ये आपने लिख दिया. देन आपने बोला GTU डॉट GST1 टू एक्सेल, तो हमें वही करना है ना, GST1 से एक्सेल बदलना है. एंड देन आपने यहाँ पे वो कोड दिया जहाँ पे आपने जेसन फाइल रखा हुआ है. सुबह वंस ओपन कि आपने वो कौन से फोल्डर में रखा हुआ है जेसन फाइल. ये आपका GST के अंदर आपने ये जेसन फाइल रखा हुआ है. ठीक है, तो एक चीज मैं पूछूंगा, जैसे कि आप लोगों में से आपको अगर जेसन फाइल के अंदर कभी देखना है कि जेसन के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, तो आपको ये पता नहीं, ये ट्रिक पता है या नहीं, बट जेसन में अगर आपने लास्ट का एक्सटेंशन अगर आप डिलीट करके आप .txt लिख देते हो एंड है ना, सॉरी, तो अगर आप यहाँ पे txt लिखते हो जेसन में एंड उसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे, तो आप लोग अपने ऑफिस में भी ट्राई करना ये चीज. कोई भी जेसन फाइल में .txt लिख आप डबल क्लिक ओपन करोगे तो आपको अंदर का पूरा कंटेंट दिख जाएगा कि एक्चुअल में जेसन में क्या कंटेंट रहता है. एंड वो कंटेंट इंग्लिश में ही रहता है, मतलब वो कुछ टेक्निकल नहीं होता है. वो ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट देख के आपको थोड़ा सा वो लग रहा है कि यार इसको कैसे रीड करेंगे, बट इट्स वेरी इजी. ये एक डिक्शनरी के फॉर्म में पाइथन में भी आप कंसिडर ऑफ डिक्शनरी एंड लिस्ट, तो इट इज वही डिक्शनरी और लिस्ट है. ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आइटम्स है, यहाँ पे CS अमाउंट लिखा हुआ है, तो दिस इज सेस का अमाउंट. ये आपका SGST का अमाउंट है, वैसे आपका रेट है, टैक्सेबल वैल्यू है. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. ठीक है, तो ये इजी है, मतलब ये जेसन फाइल के अंदर भी वो हमारा एक्सेल का डेटा ही रहता है कुछ नहीं. ठीक है, तो शुभम क्लोज दिस एंड वो जेसन ही बना दो उसको. तो यहाँ पे अब जैसे आप अपने ऑफिस के सिस्टम में जेसन रखते हो कोई ना कोई फोल्डर में, वैसे यहाँ पे हमने ये बेस मटेरियल फॉर वेबिनार GST के अंदर GST1 जेसन रखा हुआ है. ठीक है, अब इसके अंदर हमें सिर्फ वो देना है कि है ना, वो क्या क्या ये जो पाथ है वो पाथ हमने वहां पे दिया. इसके अंदर जो हमने यहाँ पे डाला था यही पाथ हमने डाला है और कुछ नहीं डाला. वहां से कॉपी पेस्ट किया पाथ को और हमने बताया कि ये वाले जेसन को कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हमने ये पाथ दिया एंड फाइल का नाम भी दिया. यहाँ पे फाइल का तो नाम हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने फाइल दे दिया. नाउ वी विल रन दिस कोड. रन करना मतलब सिंपली ऊपर रन बटन दिख रहा है ना आपको, वो ऊपर रन से आपका हो जाएगा. ठीक है, तो आप रन करना एंड आप जैसे रन करोगे आपको यहाँ दिखा है जेसन फाइल पाथ इज सिलेक्टेड, वी आर एनालाइजिंग द सीट अवेलेबल, फेचिंग द डेटा एंड कंसिडर ऑल द मेजर टेबल, ऑल डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली, we have created 2 Excel files for the summary and JSON table wise. Okay, once come to that folder, अब ये रन हो गया कोड, क्योंकि जस्ट ये रन करने से उसने वो जेसन को रीड किया एंड आप नीचे देखोगे 2 फाइल इसने बना दिया है, समरी एंड टेबल वाइज. ठीक है, तो आप टेबल वाइज को ओपन करके दिखाता हूँ मैं कि क्या बनाया उसने. तो हियर यू कैन सी आपका B2B डेटा, CDNR डेटा, आपका B2CS डेटा, इसने पूरा टेबल वाइज दे दिया है, इनवॉइस वाइज, क्योंकि वैसे ही डेटा रहता है ना GST1 में, इनवॉइस वाइज रहेगा. तो आपका ये पूरा कर दिया एंड इसमें एक एडिशनल फीचर हमने क्या डाला है कि आपका वो उसके साथ साथ इसने कंबाइन करके भी दे दिया. जो B2B, CDNR, B2CS है, ये सबको कंबाइन करके इसने एक अलग से एक्सेल शीट पे भी दे दिया. ये FCOT ऑल कंबाइंड जो है ये आपका पूरा कंबाइंड है.
है ना। तो आपका जो जेसन के अंदर इनवॉइस वाइज था वो आपका इसमें हो गया। तो आपने वो सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड लिखा था जुपिटर नोटबुक के अंदर, जिससे आपका ये हो गया। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, कोई नहीं, हाउ कैन वी इरेज? तो ठीक है, नो इश्यूज। आई थिंक देखने में आप लोग को इश्यू नहीं है, थोड़ा सा वो आई डोंट नो कैसे हो रहा है ये। ठीक है, नो नो इश्यू। ओके, तो नेक्स्ट इज GSTR1 GSTR2 जेसन टू एक्सेल। जैसे हमने GSTR1 को जेसन एक्सेल बदला, वैसे आप यहाँ पे सेम हमने लिखा वहां पर, हमने सेम कोड लिखा GTU.GSTR2B टू एक्सेल एंड देन देयर इज दिस पाथ। ये पाथ में क्या है, वही जो हमारा एक बार 2B का जो पाथ है, जहां पे हमने 2B रखा हुआ है वही पाथ है। जैसे आपने यहाँ पे रखा हुआ था वैसे हमने ये 2B यहाँ पे रखा हुआ है, एंड ये वाला पाथ हमने वहां पे दिया है। ओके, हाँ, ये आप पाथ ऐसे कॉपी कर सकते हो, अपने सिस्टम से कॉपी किया, हमने ये पाथ दे दिया। आर के बाद जो ये डबल कोलन है उसके बाद आपको पाथ लिखना है। फिर तो पाथ लिखा आपने और स्लैश देके फिर आपने वो GSTR2B जेसन का नाम दे दिया। कौन से जेसन को कन्वर्ट करना है वो बताना पड़ेगा ना इसको, कि आपको ये वाला जेसन कन्वर्ट करना है। सुमित सर, कैन बी रिमूव दिस, जो ये मतलब आ रहा है बीच में? ओके, नो इश्यू। आई थिंक आप लोग को देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बट आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गिविंग इज, हम वो पाथ दे रहे GSTR2B जेसन का। ठीक है, ठीक है शुभम, यू गिव द पाथ। हाँ, पीछे पाथ दे दिया हमने जेसन तक, एंड नाउ वी कैन एग्जीक्यूट इट। ठीक है, वो सिर्फ रन करना, ऊपर शिफ्ट इंटर या वो रन दबा के हम रन कर देंगे। इसको रन करेंगे तो जस्ट सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे स्टार बन के आ गया, वी आर फेचिंग द डेटा, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, कंबाइनिंग ऑल शीट्स एंड दिस सेविंग द सिंगल एक्सेल फाइल एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड। ठीक है, अब आप उसमें आओ अपने फोल्डर में, ये जो पाथ है ना, इस पाथ के अंदर सेव हो गया उसमें कन्वर्टेड एक्सेल करके। तो यहाँ आप देखोगे ये एक्सेल बन गया है। Okay, so here B2B data and CDNR data was there. ठीक है, so here also B2B and CDNR, जैसे आपका B2 GSTR2B में रहता है, वो सब आपका अलग अलग सीट में होके एक्सपोर्ट ऑल कंबाइन करके कंबाइन भी होके एक सीट में आ गया। ठीक है, so that is done। अब हम देखते हैं, तो हमने एक एक करके किया। ठीक है, अब हमारे पास 10 GSTR1 का जेसन फाइल है, 10 GSTR2B का है। अब हमें सब अगर एक साथ करना हो, बट व्हाट इफ यू हैड मल्टीपल जेसन, तो हमें लूप करके उसको करना पड़ेगा। तो वो कोड आप देखोगे, जो कोड हमारा 2 लाइन का था, उसमें हमने 2 या 3 लाइन और लिखना पड़ा हमें, जिसमें हमने बोला कि इस फोल्डर के अंदर जितने भी जेसन फाइल है उन सबको आप रीड करो, एंड वो रीड करके आप सबको कन्वर्ट करो, वही GSTR1 टू एक्सेल को यूज करके। ठीक है, तो इतना सा हमारा कोड थोड़ा बढ़ गया। दैट इज वेयर आई से कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम टू लर्न इट, बिकॉज आपको जैसे कि ये तो कोड मिल गया कि आपको एक जेसन को कैसे बदलना है, बट जहाँ पे आपको मल्टीपल जेसन को बदलना पड़ेगा, देन यू हैव टू थोड़ा सा वो कोड हमें देखना पड़ेगा कैसे वो होगा। सो नाउ इफ यू रन दिस, अगर आप इसको रन करोगे तो आप अभी दिखा होगा फोल्डर ये वाला, बेस मेटल फॉर वेबिनार GST1 जेसन 1 के अंदर जाना। ये एक्सेल फाइल को डिलीट कर दो, जो एक्सेल फाइल कन्वर्ट हुआ था। ठीक है ना, तो दिस टू वी हैव डिलीटेड। एंड अब जितने भी जेसन है, जितने हमारे पास कितना यहाँ पे 8 जेसन फाइल है। ठीक है, तो 8 जेसन फाइल को हम एक साथ कन्वर्ट करेंगे 8 एक्सेल फाइल में। सो ओके, तो रन द कोड। अब ये हमने ये फोल्डर यहाँ पे चूज किया है, एंड फोल्डर में हमने ये डाल दिया, एंड नीचे का कोड वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना, प्रिंट फाइल करके हमने यहाँ किया। नाउ रन द कोड। आप जब कोड रन करना एक बार, हाँ, प्रिंट नीचे नीचे में लिख दिया प्रिंट डन, मतलब कि जब वो कोड रन हो जाएगा तो लास्ट में प्रिंट आ जाए डन, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कोड सारा रन हो गया। ठीक है, अब आप रन करते हैं। अब देखो, अब जैसे रन करोगे तो यहाँ पे कुछ होता हुआ दिखेगा आपको कि वी आर एनालाइजिंग द डेटा, है ना, गेटिंग द HSN समरी करके वो थोड़ा रीड कर रहा है। एंड आप चाहो तो आपको आराम से पढ़ भी सकते हो, ये सारा बताता है कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है। ठीक है, तो वैसे कर इसने एक जेसन फाइल को किया, फिर दूसरा को किया, फिर तीसरा को किया, करके इसने पूरा रन कर रही है। ठीक है, एंड नीचे बनाना डन लिखा हुआ आ गया क्या?
हाँ, नीचे बस स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल कर देखते हैं हमारा डन हो गया या नहीं। कोड रन No, हो, it's still running. कोड इज स्टिल रनिंग और इट हैज ऑलरेडी रन। ठीक है, बट देखना अपने वो उसमें बन गया होगा फाइल। तो यार जेसन जेसन आप देखोगे तो आपके ये 8 समरी फाइल बन गए एंड 8 टेबल वाइज फाइल बन गए। समरी फाइल में आपका आ जाता है कि उसमें टोटल बीटीबी अमाउंट कितना है, वो सब आ जाएगा। एंड आपके टेबल वाइज सबका टेबल वाइज अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जस्ट एक समरी को ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आप कई बार इसको ऑल्ट एच वाई करके इसको वो कर देना एडजस्ट विद। हाँ, तो यहाँ आप देखोगे B2B बिजनेस का अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट कितना है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, B2CS का कितना अमाउंट है वो आ गया। एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट का भी कुछ एक केस है, या नहीं सॉरी क्रेडिट नोट का एक केस है, एसेसन समरी आ गया। तो बेसिकली ये समरी आपका आ गया। ठीक है, तो दिस थिंग इज देयर। तो ऐसे आपका आप देखोगे कैसे आपका सारा GST जेसन आपका एक साथ एक्सेल में बदलते हैं। ओके, एंड वैसे हम 2B का करते हैं। ठीक है, हमारा GST 1 हो गया, हम 2B को कन्वर्ट करते हैं, कैसे होगा। तो सेम आप वो फोल्डर में जाओ जिसमें आपने 2B रखा हुआ है। ये GST 2B हम रखा हुआ, ये एक्सेल फाइल को डिलीट कर देते हैं। एंड हमारे पास ये हमारे पास 10 2B है, 2B का जेसन फाइल है हमारे पास। ठीक है, तो हमने वही किया, यहाँ पे पाथ कॉपी किया हमने। बेसिकली ये हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम कोड में हम उसको बता रहे हैं कि इसको इस पाथ के अंदर का सारा जेसन फाइल को कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा कोडिंग है। हम हटा देते हैं, रुको ना जी, CPU बताओ। लेट मी सी वेदर आई कैन इरेज दिस और नॉट। ठीक है, आई थिंक अभी स्क्रीन शेयर हो रहा तो अभी शायद नहीं हो पाएगा। वंस शुभम आप ट्राई करना, अपना शेयर स्क्रीन में जाना, उसमें पेंसिल टूल में इरेजर करके इरेज हो रहा है क्या? अभी स्क्रीन में थोड़ा वो एनोटेशंस आ गए हैं। हाँ राइट राइट, सही है, ठीक है, गुड, राइट। तो अभी थोड़ा क्लियर हो गया, सॉरी फॉर दैट, जो ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, GSTR 2B फोल्डर में है, उस फोल्डर को हमने दे दिया। ठीक है, वो फोल्डर हमने दे दिया कि इसके अंदर जेसन फाइल है GSTR 2B का। एंड आपका फाइल्स के अंदर हमने वो, अभी 2-3 लाइन कोड है, समझ आ जाएगा जब हम समझाएंगे तब। अभी थोड़ा आप देख लो कि ये कोड लिखना है, इतना 4 लाइन लिखना है आपको, और आपको एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो हम एग्जीक्यूट करना है इसको। ठीक है, आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो फिर एग्जीक्यूट होगा, नीचे थोड़ा सा अपना आउटपुट देगा कि आपका ऐसे ऐसे हम ये फाइल को रीड कर रहे हैं और आपका इसमें हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं, ये करके पूरा इंग्लिश में देगा। तो मतलब आप पढ़ सकते हो, इट इज रीडेबल, है ना, ताकि कुछ भी टेक्निकल नहीं आता इसमें, सब इजीली रीडेबल होगा। तो वो रन हो गया है क्या? हाँ, अब आप इसमें जाओगे तो आपके पास पहले आपके पास 10 जेसन थे, आपके पास 10 एक्सेल फाइल हो गए। ठीक है, तो इतना इजी है कि आपका बस वो 4-5 लाइन आपने कोड लिखा, आपने रन किया, और जेसन जो था पूरा एक्सेल बदल गया। ठीक है, कोई टूल नहीं, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं इसमें। अब आप बस ये करो, एक बार आप किसी एक फाइल को ओपन करके दिखाओ, तो आपका जैसे GSTR 2B B2B ये सब होता है, वैसे आपका इसमें भी है। ठीक है, ओके, हाँ, तो आपका ठीक है, तो जैसे आपका B2B आ गया, CDNR आ गया, और एक एक्स्ट्रा सीट जो एडिशनली हम देते हैं यहाँ पे, एफकॉर्प ऑल कंबाइंड। तो ऑल कंबाइंड के अंदर क्या आता है, आपके B2B और CDNR दोनों का। तो ये तो छोटा क्लाइंट है, तो इसमें हमारा सिर्फ B2B और CDNR है, बट किसी किसी क्लाइंट में B2B CDNR B2B अमेंडमेंट, CDNR अमेंडमेंट, ISD, इम्पोर्ट, SEZ सारे केसेस होते हैं। तो उस केस में ये फिर काफी काम आएगा हमें, ये दोनों या चारों या 500 जितने भी केसेस होंगे उन सबका कंबाइंड एक जगह मिल जाएगा। अब आपको एक मैं प्रो टिप जैसा एक दूंगा, सपोज कि हमारे पास ये 10 एक्सेल फाइल है। ठीक है, 10 एक्सेल फाइल के अंदर ये एफकॉर्प ऑल कंबाइंड है। अब हम चाहते हैं कि ये 10 फाइल भी कंबाइन होकर एक फाइल बन जाए, हमें वो भी मैन्युअली ना करना पड़े, हम वो 10 फाइल को भी कंबाइन करके एक साथ एक फाइल बना दें।
तो उसके लिए ये है, ये प्रो टिप करके हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो अभी लिखा है ना, ये आप लोग को सब में पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होगा, सो यू कैन रीड इट लेटर ऑन एज वेल। अगर हमें ये करना है तो यहाँ पे एक 2 लाइन का कोड है, फ्रॉम फाइल टूल्स इंपोर्ट फाइल टूल्स एज ftu डॉट कंबाइन एक्सेल। हमने उसको बोला कि भाई ये वाला फोल्डर का, तो शुभम आप ये सारी एक्सेल फाइल्स को फोल्डर में डाल दो एक बार, ये फोल्डर चेक कर लो, ठीक है ना, एक्सेल फाइल को बंद कर दो। हाँ, अब आपका इस कंबाइन एक्सेल के अंदर हम सपोज डाल देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 10 फाइल्स आ गए, ठीक है। अब हमने पाइथन को बोलना है कि इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है, जितने भी एक्सेल फाइल्स है, उन सबको कंबाइन कर दो। बट इसमें एक चीज और हमें क्या देना है, हमें मोड दिया फाइल का कि सारी फाइल्स को कंबाइन कर दो, बट एक और चीज लिखना है कि जो एफकॉस ऑल कंबाइन वाला सीट है उसी को कंबाइन करे। हम नहीं चाहते कि वो B2B और सीडेना वाले को कंबाइन करे, ऑलरेडी उसका कॉम्बिनेशन तो एफकॉस ऑल कंबाइन में है। तो उस एफकॉस ऑल कंबाइन जो सीट का नाम है वो मेरा सारा कंबाइन हो जाए और एक एक्सेल फाइल बन जाए एक सीट के साथ। तो बेसिकली मेरे जो 10 GSTR2B के जेसन फाइल थे वो सब एक फाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे इन अ सिंगल सीट। तो ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो 10 फाइल थे उस फोल्डर में, लेट्स एग्जीक्यूट एंड विद इन फ्यू सेकेंड आप देखोगे जैसा भी ये रन हो रहा है, ऑल फाइल्स हैव बीन कन्वर्टेड। तो लेट्स ओके, एक मिनट, वो आपने ये कंबाइन वाले सीट ओपन कर रखा है ना, ठीक है। ये कंबाइन वाले एक बार क्लोज करके फिर से दिखाना, वापस स्क्रीन थोड़ा सा रुक गया था, क्लोज करके उस फोल्डर में दिखाना। देखिए ये ऑल फाइल्स एक्सेल कंबाइंड इधर आ गया है, ठीक है, सबसे टॉप में जो था। तो वो उसके अंदर आप देखोगे तो जितने भी हमारे जेसन फाइल के वो एक्सेल था वो सब कन्वर्ट होकर इसमें आ गया। एंड जो लाइन जो कोड लिखा हमने वो 2 लाइन का कोड लिखा था सिर्फ, ठीक है ना, कोई लंबा चौड़ा कोई कोड नहीं था। एंड इसमें आप देखोगे तो जितने भी 10 जेसन फाइल थे उन सब का इसमें कंटेंट है। हाउ यू कैन सी दैट इज, इसमें फाइल का नाम आता है, आप लास्ट में दिखाना शुभम, उसमें फाइल का नाम आएगा। हाँ, ये आपका जो AC वाला कॉलम है ना, AC वाला, तो AC के अंदर आपका फाइल नेम है। हाँ, इसके अंदर है कि आपका कौन सा जेसन का आपका ये पार्ट था, ठीक है। that we can See this. तो हमारे इसी तरीके से आप ये कंबाइन कर सकते हो GSTR2B को मल्टीपल GSTR। ठीक है। तो अब सुबह अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। आपने हमें देख लिया कि 1 by 1 कैसे कन्वर्ट होता है, बल्क में कैसे कन्वर्ट होता है। अब हम देखते हैं कि मर्ज कैसे होता है, GSTR2A या 2B को मर्ज करना है हमें, हाउ कैन वी मर्ज इट। तो ठीक है, तुम जस्ट शो द फोल्डर जहाँ पे ये रखा हुआ है एंड रन द कोड एंड वी विल सी। एक GSTR2A को ओपन करके दिखा देना कि GSTR2 एक्सेल, यहाँ पे हमारे पास वो एक्सेल, वो आप जब उससे डाउनलोड करो ऑक्टा GST से तो वो जिप फाइल होता है। तो ऐसा ही होता है GSTR2A सबका, B2B है, आपका किसी में डेटा होगा किसी में नहीं होगा। तो ये वाला जो कोड है इसमें आपका 4 सीट मर्ज होता है, B2B, B2BA, CDNA, CDNA, ठीक है ना। इसमें अभी ISB वाला नहीं किया, बट सिंस ये ओपन सोर्स है, अगर हमें भी कोडिंग, अगर हम लोग भी देंगे देन विल बी एबल टू डू दैट एज वेल, ठीक है। तो वो हो जाएगा। तो ये आपका GSTR2B हो गया। तो आपको अपना डाउनलोड करके एक जगह रख लेना है ना, आपको सब डाउनलोड करके एक जगह रख लेना है। एंड ये वाला फोल्डर को आप एक फोल्डर का एक कॉपी करो सुबह, जहाँ पे फोल्डर है, ये फोल्डर का हमने कॉपी किया, फोल्डर का पाथ, ठीक है, इसको हम पाथ बोलते हैं विंडोज में। GSTR2 एक्सेल का हमने नहीं, ये नहीं, GSTR2A का पाथ करना पड़ेगा ना, उसके अंदर है। हाँ, GSTR2A के अंदर है ना, हमें ये वाला पाथ करना है, ठीक है, जहाँ पे एक्सेल फाइल है। तो ये हमने कॉपी किया एंड हमने इन सब को यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड सिंपली अब ये कोड को रन करना है ना। आप इसको रन करो। हाँ, शुभम पूछ रहे हैं कि ये ना कोड अवेलेबल, ये सारे कोड अवेलेबल है एंड ये कोड के अंदर का जो वर्किंग है वो भी अवेलेबल है। मतलब अभी तो हमें 2 लाइन का कोड दिख रहा है ना, ये कोड के अंदर कैसे वो काम करता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। पाइथन में द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग इज दैट नथिंग इज हिडन।
सारी चीजें अवेलेबल होंगे, वो हम दिखाएंगे आप कैसे देख सकते हो उसको। तो आप देखोगे सारा GSTR2 में मर्ज हो गया, ठीक है। आप ओपन करो, अब वो सॉरी वो फोल्डर में जाओ, आप फोल्डर में जाओगे, आपको यहाँ पे देखो नीचे में दिख रहा है मर्ज GSTR2 ऑफ ऑल फाइल बाय एफकॉन, ठीक है। तो इस फाइल को आप ओपन करोगे, देन यू विल सी इसने क्या क्रिएट किया है। सो लेट्स ओपन एंड सी। आप ये देखो इसका B2B है। तो B2B बेसिकली क्या है, आपके जितने भी 10 फाइल्स है ना GSTR2 के, सबका B2B फोल्डर का B2B सीट का कॉम्बिनेशन। B2B में क्या है, उसके अंदर जितने भी B2B थे वो सारे B2B का कॉम्बिनेशन, ठीक है। वैसे CDNR CDNR तो ये चारों सीट को तो इसने सारी फाइल्स का कंबाइन करके डाल दिया, ठीक है। अब आते हैं ऑल कंबाइंड में। ऑल कंबाइंड बेसिकली क्या है, ये जो चारों सीट ऑफ ऑल दोज फाइल्स कन्वर्टेड इनटू वन एक्सेल सीट, तो वो सबको इसने कन्वर्ट करके इसमें डाल दिया है, ठीक है। एंड ये कोड को हमने काफी टेस्ट किया हुआ, वी हैव टेस्टेड इट अपन लाइक लैक्स ऑफ रोज। इवन GSTR2 जिसमें 1 लाख या 2 लाख रो होते हैं, उस पे भी ये टूल वर्क्स परफेक्टली, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कोई रो आपका छूट जाएगा। मैनुअली कोई आप अपने आर्टिकल को या किसी को दोगे करने के लिए, इट मे हैपन दैट ही मिसेस आउट समथिंग, बट इट वोंट हैपन इन केस ऑफ दिस टूल। वो हर एक B2B सीधा को सबको मर्ज करके सारे का इसमें डाल देगा। सो दिस इज देखो आपका 121, 122, 221, 321, 421, इन सारे फाइल्स का सारी सीट को इसने मर्ज कर दिया एंड इसमें एक में डाल दिया, ठीक है। तो दिस इज कि हम कैसे काम कर सकते हैं। एंड GSTR2 के ऊपर, इसी टूल के ऊपर एक अलग वीडियो भी है, एंड द वीडियो इज अवेलेबल ऑन YouTube दैट वी विल शेयर लेटर ऑन। तो कैसे आप लोग देख सकते हो। ओके, तो ये हो गया। तो ये GSTR2 कॉम्बिनेशन था, ठीक है। अब हम देखते हैं GSTR2B। अब 2B का एक्सेल क्या है, 2B का जेसन तो हमने देखा कि वो एक साथ ऑक्टा GST से आ जाता है, ठीक है। बट जो GSTR2B का एक्सेल है, एक्सेल आपको एक एक करके डाउनलोड ही करना पड़ेगा मंथ के अंदर जाना। इफ समवन हैज एनी टूल जिसके थ्रू वो एक्सेल GSTR2B को भी डाउनलोड कर सकता है एक साथ सारे साल का, बाकी फॉर इंटायर ईयर, तो प्लीज टेल इन द चैट बॉक्स, वी विल बी लविंग टू नो कि अगर ऐसा कोई टूल है तो। एंड मोस्ट प्रिफर अगर वो फ्री टूल है तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मर्ज GSTR2B है। हमने क्या किया, उस फोल्डर में जाना, उस फोल्डर के अंदर हमने सारे GSTR2B को रखा है डाउनलोड कर करके, ठीक है। तो ये हमारे पास 14 GSTR2B है। अब 2B आप लोगों को पता है कैसा दिखता है ना। तो ये 2B कुछ ऐसा दिखता है जिसमें आप है ना रीडमी ITC अवेलेबल नॉट अवेलेबल, तो अवेलेबल नॉट अवेलेबल कुछ नहीं करेंगे हम। B2B सीधे को वो इनवॉइस वाइज हमें चाहिए ना, तो इनवॉइस वाइज जो ये 5-6 सीट है ना, उन सबको कंबाइन करके हम एक सीट में लेके आ जाएंगे एक एक्सेल फाइल में। तो वो ओके, क्लोज दिस फाइल शुभम एंड लेट्स गो टू द कोड। तो कोड में हम ये कन्वर्ट करेंगे। हमने वही फोल्डर चूज किया जिस फोल्डर में फाइल्स रखे हुए, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हमने फंक्शन का नाम है gtu.merge GSTR2B एक्सेल, एक्सेल को मर्ज करना है एंड इसको रन किया। सिंपल, आपको सिर्फ ऊपर एक लाइन लिखना, वो लाइन तो कांस्टेंट है, सेकंड वाला लाइन थोड़ा सा चेंज होता है, वो फंक्शन चेंज होता है। एंड आपको अपना फोल्डर देना है जिस फोल्डर के अंदर है आपका। आप देखोगे अपने आप ये वर्किंग ऑन GSTR2B ये सब लिखेगा एंड विद इन फ्यू सेकेंड, मैक्सिमम 1-2 मिनट में। एंड किसी क्लाइंट में हमारा जैसे कि 10,000 20,000 रोज होता है, उसमें हमने देखा कि थोड़ा सा 3-4 मिनट लगता है इसको। बट अगर किसी का 500,000 रो होगा, then it will work in like within a minute. So all files have been combined. अब फोल्डर में जाते हैं, नीचे देखोगे कंबाइंड फाइल आ गया, ठीक है। एंड कंबाइंड फाइल के अंदर ये आपके जितने भी B2B B2C ये सारे थे, सारे कंबाइन हो गए। आपका एक अलग अलग भी कंबाइन हो गया है ना, आपका वो अलग अलग भी कंबाइन हो गया, आपका एक साथ भी कंबाइन हो गया ऑल कंबाइंड के अंदर। अब इस केस में क्लाइंट का डेटा नहीं था, बट आपका क्लाइंट का डेटा होगा तो भी उस पर वर्क करेगा। ISB IMPG तो सबको ये कंबाइन कर देगा, ठीक है। ऑन ऑल कंबाइन करके आपका एक सीट भी दे देगा। तो इन दैट वे आपका रिकंसिलिएशन काफी इजी हो जाएगा। अब आते हैं कि अब हम इतना सारा कर क्यों रहे, हम GSTR2A मर्ज क्यों करना है, GSTR2B मर्ज हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने परचेज रजिस्टर से उसको मैच कर पाए, राइट। दैट इज द इंटायर गोल, कि अभी रिसेंट अमेंडमेंट में हम सिर्फ उतना ही ITC ले सकते हैं जितना कि मेरे 2B में आएगा। तो उस केस में हमें 2B को मर्ज तो इस टूल से हमने कर दिया, अब हमने अपने परचेज रजिस्टर से उसको मैचिंग करना है। तो मैचिंग करने के लिए हमें एक ITR चाहिए और एक 2B चाहिए। 2B कंबाइन कैसे होगा वो तो हमें बता लिया,
ITR कंबाइंड यूजुअली आपका क्लाइंट का आपके पास होता ही है। जैसे मैं अगर दिसंबर का रिटर्न अभी 3B का भरूंगा तो मेरे पास अपना दिसंबर का ITR है अपने कंपनी का। तो अब मेरे को ये ITR और वो GSTR 2B को कंपेयर करना है, ठीक है। सो हियर दिस टूल इज वेरी बेनिफिशियल। तो इसमें क्या, जैसे कि आपको यूजुअली मार्केट में बहुत सारे टूल्स होंगे, बट उसमें एक थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है कि हमें उसको उसके फॉर्मेट में बनाना होता है। वो बोलेगा कि यहाँ पे GST नंबर डालो, यहाँ पे ये डालो, इसको ये सीट में ऐसा होना चाहिए, या उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ये टूल में भी थोड़े रिक्वायरमेंट्स है, बट दोज आर वेरी इजी टू कंप्लाई। तो एक बार डाउनलोड करके मैं दिखाता हूँ कि ये आपको दिखाता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो कैसे वो करना है अपना 2B को। तो एक बार ये डाउनलोड करना शुभम, ये जो हमारा डाउनलोड वाला है। हाँ, फॉर्मेट दिखाना। हाँ, यहाँ पे हमने डाउनलोड किया, ठीक है। इसको रन करो। ये फॉर्मेट आ गया। डाउनलोड वाले फंक्शन से ये फॉर्मेट दे देगा कि इस फॉर्मेट में चाहिए। अब इसको बड़ा करते हैं। ITR के अंदर आपके 4 ऐसे फील्ड है जो मैंडेटरी होने चाहिए, एंड फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। बस एक रिक्वायरमेंट है कि आप है ना पहला रो ब्लैंक मत रखना, पहला रो से स्टार्ट कर देना। मैं ये नहीं कि आप तीसरा या चौथा रो से करना, सिर्फ ये आपके 4 कॉलम्स होने चाहिए, एंड ये कॉलम्स का नाम वही होना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है। तो वेंडर GST जैसे वो अंडरस्कोर के साथ लिखा हुआ है ना, वैसा ही होना चाहिए। सिर्फ ये 4 चीजें ITR में। बाकी आप है ना मल्टीपल, वो सीट का नाम होना चाहिए मेन ITR फॉर्मेट। तो सीट का नाम उस ITR के अंदर हो सके 10-15 सीट है, आपका जो मेन ITR जहां भी होगा, आप वो मेन ITR फॉर्मेट को यहाँ पे उसका नाम दे दो, एंड इसमें ये 4 कॉलम का नाम दे दो। वैसे ही 2A में आपके 6 ऐसे फील्ड है जो होने चाहिए, ठीक है। तो वो फील्ड आपके हैं GST IN ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर का डेट, टोटल टैक्स, फाइलिंग स्टेटस एंड GST नंबर। मतलब ये आपके 6 फील्ड है जो होने चाहिए, एंड बस इतना ही है। एंड उसका नाम होना चाहिए आपका मेन 2A फॉर्मेट, ये उसका नाम होना चाहिए, सीट का नाम, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो कम टू आवर फाइल जो हमने अपना 2A, और अब जैसे ये 2A के लिए काम करे तो 2B के लिए भी काम करेगा। आपका 2B में भी आपको क्या बोलते हैं, वो मेन 2A फॉर्मेट लिख दो, उसका नाम, और वो ऊपर में आप उसका कॉलम जैसे से वैसे दे दो। उसका ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब जैसे आप ये देखो, अब ये मेन 2A फॉर्मेट है, इसके अंदर मेरा अपना बाकी सारे सीट्स भी है, बट मैंने अपने जो मेन सीट है मेरा, मैंने उसको नाम दे दिया मेन 2A फॉर्मेट। बाकी मैंने अपने GST IN ऑफ सप्लायर का नाम ऐसे दे दिया। बाकी सब कॉलम्स में आप जो नाम देना आप दे सकते हो, ठीक है। बट ये जो 6 कॉलम 2A में है, उसका नाम आपको वही देना जो वो फॉर्मेट में आता है। सिर्फ ये 6 कॉलम, बाकी आपको 100 कॉलम 200 कॉलम जितने कॉलम डालने अपने टेबल पे आप डालो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये अपने 6 दे दिया। वैसे ITR दिखाना, ठीक है ना, आपको जितने कॉलम डालना आप डालो इसमें ना, नो इश्यूज एट ऑल, बट वो 6 कॉलम होने चाहिए। एंड ये मेरा ITR है। अब ये मैंने टैली से निकाला ये ITR, यूजुअली हम टैली पे काम करते हैं। तो टैली का ITR को मैंने थोड़ा बहुत ठीक करके, कि टैली वो ऊपर के स्पेसेस हटा दिए ताकि ये फर्स्ट रो में ये दिखे। एंड वही जो हमने बोला ना, वो 4 कॉलम होने चाहिए। जैसे ये G नंबर का कॉलम आपका एक है, एक आपका वेंडर GST रजिस्ट्रेशन D नंबर का कॉलम हुआ, इनवॉइस नंबर हुआ, तो ये सब कॉलम आपके होने चाहिए। एक बार आप देखना इसमें नंबर सही नहीं आ रहा, शुभम देखना, वेंडर GST नंबर यही है क्या, फॉर्मेट में क्या है, क्या होना चाहिए, और इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इनवॉइस नंबर थोड़ा अलग है इसमें, और फॉर्मेट में देखो क्या होना चाहिए, ITR का क्या होना चाहिए, ITR का, अच्छा ठीक है, इनवॉइस नंबर ही होना चाहिए, ठीक है ठीक है। तो आपको इनवॉइस अंडरस्कोर नंबर लिखना है, ठीक है। वैसे इनवॉइस डेट टेक्स्ट, मतलब आपको जो डेट देना वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए, वो डेट नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसे डॉट यूज किया है, वो डैश नहीं यूज किया। अब देखोगे इधर, जैसे ये आपका डेट, जो F कॉलम है वो डेट फॉर्मेट है, बट आपका G कॉलम जो वो टेक्स्ट फॉर्मेट है, आपको ऐसा टेक्स्ट फॉर्मेट में देना है, ठीक है। तो ये हमारा ITR और 2A हो गया, ठीक है। तो नाउ क्लोज दिस फाइल एंड लेट्स रन आवर कोड कि कैसे काम करता है। तो हमने ये 2 फाइल को अपने सिस्टम में रखा हुआ है, ठीक है, जहां भी हमारा चाहे ITR के अंदर ITR और 2A के अंदर 2A, उसका हम ये कोड में आए। ये कोड का नाम ये इसका है, इसमें भी 2 लाइन है। अब तब से आप देखोगे सब केसेस में 2-2 लाइन का ही कोड है, कोई लंबा, वो पहला लाइन तो सब में सेम ही है, सिर्फ दूसरा लाइन चेंज हुआ है। तो GTU.RECO ITR 2A पहला हमने दे दिया आपका, ये पहला ये वाला ITR का लिंक दे दिया कि ITR कहाँ पे है, तो ITR को कॉपी किया, एंड ITR का हमने वो पाथ दे दिया कि ITR मेरा कहाँ पे रखा हुआ है।
अब पाइथन को हम इतना तो बताएंगे ना कि मेरा ये वाला ITR है और ये वाला 2A है, उसका पाथ देना है बस हमें इसको। जैसे हम कोई टूल यूज करते हैं तो हम ब्राउज करके सेलेक्ट करते हैं ना, तो वही चीज हम यहाँ पे टूल नहीं यूज करें तो हम उसको पाथ डायरेक्टली दे रहे हैं। तो ये हमने पाथ दे दिया ITR का, हमने यहाँ पे 2A का दे दिया पाथ, कॉमा देके हमने 2A का पाथ दे दिया, जैसे 2A का पाथ है। एंड वैसे लास्ट में हम एक डाल सकते हैं टॉलरेंस लिमिट। अब टॉलरेंस लिमिट क्या होता है, आप लोग अगर टूल को यूज करते हो कोई भी टूल को, तो उसमें सब में ये पूछता है टॉलरेंस लिमिट कि आप कितना तक का डिफरेंस को आप मैच मानोगे। मतलब अगर मेरे ITR में 100 रुपये आता है, बट मेरे सप्लायर ने 103 रुपया फाइल किया, या सपोज 98 फाइल किया, तो आप कितना तक का डिफरेंस को आप मानोगे। तो यहाँ मान लें कि 100 रुपये तक का डिफरेंस को मान लेंगे। अगर सपोज मेरा अगर 10,000 ITR में है टैक्स, और उसने अगर 10,090 फाइल किया, तो भी मैं उसको एग्जैक्ट मैच मानूंगा। आप चाहते हो कि ये 100 की जगह 10 हो, 1000 हो, 20 रुपया हो, जो भी हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। 100 की जगह 10 लिख दो या 1000 लिख दो, ठीक है। अभी हम 100 ही रखेंगे केस में, तो हमने 100 रखा। एंड अब हम इसको रन करते हैं। सिर्फ ये एक लाइन कोड लिखा है हमने, ITR का पास दिया, 2A का पास दिया और उसको रन कर दिया। अब ये पता है टॉलरेंस से मेरे सेट टू 100, अपना अब ये रन हो रहा है एंड वो मैच कर रहा है। तो ये मैच कैसे करेगा आपका, वो 3 वे मैच करेगा। इनवॉइस नंबर सेम होना चाहिए, डेट सेम होना चाहिए और GST-IN सेम होना चाहिए, 3 चीज सेम होना चाहिए। एंड सेम मतलब दोनों मैच करेगा। टैक्स का अमाउंट तो मैच करेगा ही, टैक्स का अमाउंट तो 100 के डिफरेंस के अंदर होगा तो ही वो मैच मानेगा। एंड कुछ ये फजी लॉजिक के बेस पे भी करता है। आपका 3 वे हो गया, फिर 2 वे भी मैच करता है। सपोज किसी का GST-IN और इनवॉइस नंबर मैच कर रहा है, बट डेट में 1-2 दिन का फर्क है, तो भी वो मैच डाल देगा, बट वो कैटेगरी डाल देगा कि ये किस कैटेगरी में मैच हुआ है। तो सिमिलरली लेट्स सी है ना, मैचिंग हैज बीन डन। तो एक बार मैचिंग वाला फाइल देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है, क्या ये यूजर फ्रेंडली आउटपुट है या नहीं। एक बार वो आउटपुट दिखाना कि वो समरी फाइल में, समरी और वर्किंग 2 फाइल आएगा। पहले समरी फाइल ओपन करते हैं, तो इसको बार ठीक करते हैं। अब देखो हमारे पास टोटल केस, अब यहाँ पे GSTR 2A है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ठीक से कर दो, बोल्ड वगैरह कर दो, इसमें टेबल फॉर्म में ला दो। ठीक है, हेडिंग को वो सेंटर अलाइनमेंट बोल्ड, ठीक है छोड़ो। तो ये हमारा टोटल केसेस हो गए। अब यहाँ पे देखो टोटल केसेस इन ओरिजिनल फाइल, GSTR 2A में टोटल कितने केसेस थे। आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आपका जो फाइल होगा उसी से मैच करेगा ये, ठीक है। टोटल इतने केसेस थे, उसमें से हमने क्या हटा दिया, हमने परचेज रजिस्टर में जिसमें GST नंबर था ही नहीं उसको हटा दिया, कि वो कैसे मैच होगा, वो तो अनरजिस्टर्ड से हो गया तो मैच नहीं हो सकता, हमने वो लेस कर दिया। दूसरा हमने हटाया GSTR नॉट फाइल्ड केसेस। अगर आपको देखोगे बहुत सारे केसेस में GSTR 2A में वो सबमिट करके रख देते हैं बट फाइल नहीं करता है जो सप्लायर होता है, तो वो हम GST नहीं लेते हैं, तो उसको हमने लेस कर दिया। GST-1 फाइल बट RCM केसेस, अगर RCM केस है तो वो तो मतलब मीनिंग ही नहीं है मैच करना, वो मैच ही नहीं करना, तो हमने वो हटा दिया। इनवॉइस नंबर हमारे परचेज रजिस्टर में नहीं है। कभी कभार क्या होता है टैली में किसी ने एंट्री किया, इनवॉइस नंबर डाला ही नहीं, जब इनवॉइस नंबर है नहीं उसका हम इनपुट ले नहीं सकते, तो ये सब केसेस हमने लेस कर दिया। एंड नेट केसेस टू बी मैच, मतलब अब इतने केसेस हम मैचिंग करेंगे एक्चुअली, बाकी केस को हमने ऐसे ही हटा दिया। ओके सुबह में बार तो क्लियर कर देना। तो बाकी केस को हमने ऐसे हटा दिया, ठीक है। अब हम इतने को मैचिंग करेंगे। अब जब मैचिंग करने हम गए तो कितना मैच हुआ, जो मैच विथ GST नंबर, इनवॉइस डेट, मतलब ये तीनों एस्पेक्ट में ये मैच हुआ है। GST नंबर भी सही है, इनवॉइस नंबर भी सही है, इनवॉइस डेट भी सही है, टैक्स का अमाउंट में 100 रुपए का अंतर होगा, ठीक है। तो वो उतने कितने केसेस आए, इतने केस आपके ये मैच हो गए। जो 2 वे मैचिंग है आपके इतने केसेस हुए। जो इनवॉइस डेट से 2 वे मतलब क्या हो गया, GST नंबर और इनवॉइस नंबर मैच कर रहा है, या GST नंबर और इनवॉइस डेट मैच कर रहा है। एंड अमाउंट तो मैच करेगा ही, ठीक है। अमाउंट में तो वो 100 रुपए का लिमिट है ही, बट आपका ये 2 वे हो गया। इतना करने के बाद हमने ये फजी लॉजिक मैच कुछ किया। जैसे आपका हर एक सॉफ्टवेयर में एक फजी लॉजिक होता है कि शायद वो एस्टिमेट करता है कि शायद ये मैच हो, बट इसको अभी भी आप लोग 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा इस पे होता थोड़ा सा अभी भी डिफरेंसेस आए, तो इसको भी साइड रखते हैं। दूसरा है मैच विथ पैन। कितना बार होता है कि हमने GST नंबर से मैच करते तो मैच नहीं हो रहा, बट पैन से उसने मैच कर दिया, तो ऐसे भी केसेस होंगे तो ये मैच हो जाएंगे। अब वैसे पैन का 3 वे और 2 वे इतना मैच करने के बाद अभी आगे अनमैच केसेस। अनमैच केसेस कितने रह गए, तो इसमें अनमैच केसेस जिसमें पैन GST अवेलेबल है ही नहीं 2 वे में, मतलब मेरे ITR में जो GSTR 2 वे
जीएसटी नंबर है वो जीएसटी एक्ट 2A में है ही नहीं। अब जब जीएसटी नंबर ही नहीं है तब तो मैच होने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरा केस हो गया कि मेरे में है बट मेरा में इनवैलिड जीएसटीआईएन है। अब मेरे इनवैलिड जीएसटीआईएन मतलब मैंने कहीं ना कहीं एंट्री में गलती की है, तो वो मेरा अलग से बता देता है कि 3 ऐसे केसेस है। एक है इनवैलिड इनवॉइस नंबर, मैंने इनवॉइस नंबर इनवैलिड रखा। अब इनवैलिड मतलब क्या होता है, 16 डिजिट से ऊपर होगा तो वो इनवैलिड मान लेता है। तो ऐसे केस भी ना मैच नहीं हो सकते क्योंकि पोर्टल पे तो 16 डिजिट तक ही इनवॉइस नंबर आएगा। एंड बाकी हो गए अदर अनमैच केसेस कि बाकी इतने अनमैच केस। तो ऐसे आप देख सकते हो पूरा रिकंसिलिएशन ये करके देता है। तो ये तो इसका समरी हो गया। अब सब वर्किंग में देखते हैं कि क्या डिटेल्स में कैसे दिखाता है ये। इसको भी ओपन नहीं, ओपन रखो क्या, ठीक है। वर्किंग में देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम मैच वाले केसेस में जाते हैं। मैच केसेस में आईटीआर में आपको देखा यहाँ पे 6 सीट्स होंगे। ओरिजिनल 2A ओरिजिनल आईटीआर क्या था आपका, जो इनपुट है एग्जैक्ट हूबहू सेम होगा इसमें, ठीक है। 1 रुपए का भी इधर उधर नहीं होगा इन 2 सीट्स में। मैच जीएसटीआर 2A मैच आईटीआर, इसमें होगा आपका कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो आपके मैच हुए और किस कैटेगरी में मैच हुए, 3 वे हुए या 2 वे हुए। अब वो मैचिंग कैटेगरी भी आता है। आप एक बार इसका वो फिल्टर लगाना, लास्ट में जाना, मैचिंग कैटेगरी आएगा। मैचिंग कैटेगरी एएफ में मैचिंग कैटेगरी आ रहा है, इसको एक बार करो। अब किसी एक को सेलेक्ट करना आपका, जैसे है ना, इसको करो 3 वे मैच इनवॉइस नंबर प्लस इनवॉइस डेट, नहीं हाँ ये वाला, हाँ 3 वे मैच इनवॉइस नंबर प्लस इनवॉइस डेट करो। इसका टोटल देखो, टैक्स का टोटल कितना आ रहा है, काउंट कितना आ रहा है। टोटल आ रहा है इसका देखिए 24 करोड़। तो एक मिनट से करना, सब टोटल कर दो, सब टोटल से आएगा ना, सम से नहीं आएगा। आगे क्या देखना, सब टोटल करना, सब्स्टिट्यूट किया ना, सब टोटल। ठीक है, ओके 24 करोड़ 54,86,115। अब लेट्स सी द समरी फाइल, इतना ही अमाउंट था या नहीं था मैच आईटीआर में। लेट्स कंपेयर वन सी, डिफरेंस नहीं आता। ओके अब देखो ये 24 करोड़ 54,86,187। तो ऐसे आपका जो भी यहाँ पे नंबर है ना, उस सारे नंबर्स का बैकअप आपको उस वर्किंग फाइल में मिलेगा, ठीक है। अरे वो डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं, एग्जैक्ट 5 to 5 इट विल मैच। सो इन दिस वे आपका जो अनमैच आईटीआर है उसमें भी आ जाओ, दिखा दो कि कैसे इसको क्लासिफाई किया अनमैच आईटीआर को। अब अनमैच आईटीआर का भी आप लास्ट में आप देखो तो कैटेगरी आ रहा होगा। ये आपका जीएसटीआर नंबर, टेक्सम इनकरेक्ट, ये सब इसने बता दिया है ना। जहां भी आपका इनवैलिड है, इनवॉइस नंबर लेंथ एक्सीड 16 डिजिट, या पैन नंबर जीएसटीआर 2A में नहीं है, और लास्ट में नॉट मैचिंग, भाई कोई भी तरीके से फर्जी लॉजिक करके मैच नहीं कर रहा, इनवॉइस नंबर का ही गलती है। सॉरी। तो ऐसे करके आपका पूरा रिकंसिलिएशन हो जाता है। अभी जैसे 2A के साथ इसने रिकंसाइल किया है, आप सिंपली 2B के साथ भी कर सकते हो। आपके पास 2B का एक्सेल फाइल है, आप 2B का वो 6 कॉलम को हाईलाइट करो एंड उन Your सबको speaker is not connected. अरे तो अपना स्पीकर पे डालो तुम माइक्रोफोन की। सेम है सिस्टम, सेम है। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, जैसे आपने 2A मैच किया वैसे 2B भी मैच हो जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्मेट में बस आपको वो कॉलम्स का नाम चेंज करना है। उसको थोड़ा ना पता कि 2A मैच करे 2 मैच करे, वो तो एक्सेल टू एक्सेल मैच करता है, ठीक है। तो इन दैट वे दिस कैन बी डन। सो दिस इज अबाउट ओके शुभम, सो क्लोज दिस फाइल एंड इसके प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सो दैट लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे यू कैन एक्सेस दैट। लास्ट हमारा जो एजेंडा था दैट वाज बल्क जीएसटी एंड वैलिडेशन, कि आप कैसे, अगर आपके पास मल्टीपल जीएसटी कैसे वैलिडेट कर सकते हो। एक बार वो एक्सेल दिखाना जहाँ पे आपके पास वो जीएसटी फाइल का लिस्ट है, जीएसटी का लिस्ट है। ओके तो यहाँ आप देखो हमारे कितने जीएसटी है टोटल। ओके नीचे तक जाना, 5,254 GST. Hello, Pranav ji. One question is there. Yes. Can I ask? Yes, बताइए नो इशू। जो आपने बल्क जीएसटी 2B का रिकंसिलिएशन किया था, हाँ, इसके अंदर अगर सपोज इन माय आईटीआर रजिस्टर, हाँ, if one invoice contain 3-4 times line item, suppose in my invoice there is a 4 line item,
and my system is taking booking of each line item. तो And इसलिए if I'm doing the console reconciliation, then हाँ, it automatically aggregate the value, or how do they match? इट विल एग्रीगेट जो पीछे लॉजिक है वो पहले पाइवट बनाता है, इनवॉइस वाइज पाइवट Okay. बनाता है, सिंस पाइवट बनाता है तो वो अपने आप एग्रीगेट कर देता है। And the second question is that right now the government is suo moto cancelling or suspend the GSTN of the taxpayer. हाँ, So the reconciliation provide us the status of the GSTN of particular taxpayer in that reconciliation, or we have to check in different way. ठीक है, जैसे अभी हम जो वैलिडेशन वाली बात कर रहे हैं, आपने सही टाइम पे पूछा है, वैलिडेशन वाली जो हम बात कर रहे हैं इसमें हमने जो चेक है मेरा वैलिड और इनवैलिड का है कि जीएसटीआईएन का चेक सम के बेसिस पे ही बताता है, बट उनका Okay. क्वेश्चन है कि क्या कैंसल्ड और कैंसल्ड हो या इनएक्टिव हो या सस्पेंडेड हो, क्या ये भी हमें पता चल सकता है फॉर बल्क। तो इस पे हमने एक वीडियो बनाया था एंड वो हम डिस्कस करेंगे अभी, दैट योर क्वेश्चन इज वेरी जेन्युइन, हम डिस्कस करेंगे वो कैसे हो सकता है, ठीक है। ओके ठीक, सो अब हम हाँ, अब हमने ये ये हमें जीएसटीआईएन हमारे पास 5000 जीएसटीआईएन है। लेट्स सी कि इसका कैसे हम स्टेटस ले सकते हैं। ओके शुभम, रन द कोड, जो हमारा कोड है, तो इट इज अगेन 4-5 लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। आप शायद देखोगे ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको सिंपली अपना ये फोल्डर डाल देना है, किस फोल्डर के अंदर आपका वो एक्सेल फाइल है, एंड देन आपको वो एक्सेल फाइल तक का पूरा नाम देना है कि कौन सा एक्सेल फाइल ये देखे, ठीक है ना। तो उतना हमें बताना पड़ेगा। हमने ये बता दिया कि ये जीएसटीआईएन वाला फाइल देखो, उसके अंदर हमने ये कुछ अब ये टू एक्सेल मतलब उसको एक्सपोर्ट करना है ना, हम एक नया फाइल बनवाएंगे उससे, भाई एक नया फाइल बनाना। तो नया फाइल में हम बोलेंगे कहाँ पे एक्सपोर्ट करें, तो हम बोल देंगे इस वाले ही फोल्डर में export.xlsx नाम से आप एक नया फाइल बना दो। सिंपली इतना बताना है इसको, ठीक है। बाकी वो 2 लाइन ऑफ कोड तो सिंपल है, उसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं बाद में। तो ये हमने किया डन, अब इसको प्रिंट डन किया, अब इसको रन करते हैं। अगेन कुछ सेकंड लेगा, 5-6 सेकंड में इसने कर दिया 5000 जीएसटीएन, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, लेट्स सी द एक्सपोर्ट फाइल इसने जो बनाया। तो इसके अंदर क्या देता है ये, आप एक फिल्टर लगाओ सुबह इसमें, ऑल टाइप पे, हाँ ठीक। अब इसने सबसे पहले तो इसने दे दिया कि जो आपका जीएसटीआईएन है वो इनवैलिड है या वैलिड है। वैलिड है तो कौन सा जीएसटीआईएन है, नॉर्मल वाला या टीडीएस वाला है। बहुत बार ये भी गलती होती है कि हम जब अपना आईटीआर फाइल करते हैं, नंबर जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, हम अपने क्या बोलते हैं कस्टमर का टीडीएस वाले में फाइल कर देते हैं। दैट इज अ ब्लंडर, क्योंकि अगर हम टीडीएस वाले में फाइल कर देंगे उसका, तो शायद जीएसटी पोर्टल एक्सेप्ट भी कर लेता है, बट वो बेचारा जो कस्टमर है उसको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ नॉर्मल वाले का ले सकता है। तो ये एक चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम जो जीएसटीआई में फाइल कर रहे हैं वो वैलिड है। तो आजकल इनवैलिड वाला तो वैसे ही आपका जीएसटीआई 1 में लेगा नहीं, ठीक है। बट कितना बार आपका होता है कि टीडीएस वाले में या आईएसडी वाले में आप फाइल कर दो। मोस्टली बड़े कंपनी के केस में होता है कि वो सेम पैन में उनका आईएसडी वाला, टीसीएस वाला, टीडीएस वाला, ओआई कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा आपको बता देता है। और इनवैलिड वाले को करना, इनवैलिड वाले को अगर फिल्टर आउट करोगे तो इसमें आपका ये बताता है, जैसे कि नहीं, पहले आप नॉर्मल को करना, पहले नॉर्मल को फिल्टर आउट करो एक बार। जो वैलिड थे, तो वैलिड में लास्ट डिजिट बता रहा है, इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स सिंस ये वैलिड था, तो आपका जो हमारा जो लास्ट डिजिट बता रहा है एक्चुअल में लास्ट डिजिट होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से वही बताते हैं कि चेकसम क्या होना चाहिए। ओके, तो इन दैट वे थोड़ा जूम कर देना शुभम, थोड़ा जूम करना। ओके, सो ऐसे आप देखोगे तो लास्ट डिजिट भी ये बता देता है, ठीक है, क्या होना चाहिए। अब जो इनवैलिड के केस में आते हैं, इनवैलिड वाला, तो इनवैलिड में मैंने यूजुअली देखा है कि हमारा लास्ट डिजिट का चेकसम में ही हमें पता चल जाता है कि वो गलत है। जैसे आप इनवैलिड में देखो किसी और का, जैसे यहाँ पे आ रहा है कि चेकसम होगा ब्रैकेट। अब चेकसम ब्रैकेट आने का मतलब ये है कि जो शुरू के 14 डिजिट है ना, उसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि आपका चेकसम ब्रैकेट तो हो ही नहीं सकता। तो आपका जो शुरू के 14 डिजिट है दैट इज रॉन्ग समवेयर। नाउ इफ जैसे इसमें 1 आ रहा है, अभी यहाँ ये वाला केस देखिए 248 वाला, और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि किसी ने गलती से आई लिखा है। अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा देन इट विल बिकम अ वैलिड जीएसटीएन। तो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो पॉइंट आउट द टाइपो एरर। तो टाइपो एरर में हमें कितना बार दिख सकता है कि सर चेकसम क्या होगा, क्योंकि पैन तो हम वैलिडेट कर सकते हैं उसका कि पैन नंबर और पैन कार्ड से देख लिया, वो जिस स्टेट में वो स्टेट कोड भी हमने चेक कर लिया। उसका तो 1Z4 जो लास्ट के 3 डिजिट है, यूजुअली 1 होता है फर्स्ट एंटिटी है, तो 1 2 या 3 होगा, एंड जेड आपका जेड सब केस में होता है। एंड आपका लास्ट चेकसम में ही दिक्कत आती है क्या चेकसम होना चाहिए।
तो ये आपका जो बी कॉलम है आपका टेक्स्ट सम बता देता है। तो इन दिस वे दिस इज द थिंग। एंड जो हितेश जी पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता चले किसी का कैंसल्ड है कि सस्पेंडेड है, तो इस पे हमने वैसे एक वीडियो बनाया था कि अगर आपके पास 3000 जीएसटीएन है एंड आपको सबका जानना है कि वो कैंसल्ड है या क्या है, तो आप कैसे पता लगाओगे। तो वो वीडियो अभी अवेलेबल नहीं है, अभी हमने उसको हटा दिया अपने चैनल से। आई टेल यू द रीजन। पहले आना शुभम सेलेक्ट सम 100-200 जो वैलिड है उसको सेलेक्ट करना and select some 200 or 300 GSTN and go to the Gen GST site। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल वाले हैं। तो Gen GST एक साइट है जहां से आप ये जो हितेश जी का क्वेरी था दैट विल हैपन। ठीक है, तो एक बार Gen GST का साइट भी देख लेते हैं क्या है। तो हम बेसिकली पहले हम दिखा देते हैं कि कैसे वो Gen GST का साइट विल वर्क। शुभम आपका ये थोड़ा सा स्क्रीन आप एक बार देखोगे, ऊपर का हेडिंग नहीं आ रहा, मतलब जूम आउट या तो करना पड़ेगा, कुछ हेडिंग नहीं आ रहा आपका। हाँ ठीक है, अब ठीक है, जीएसटी जेन वैलिड है। ये वाला कर दो, हाँ फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे जेन जीएसटी का इसका लिंक आई विल गिव इन द, बाद में हम दे देंगे इसका लिंक भी, जेन जीएसटी वैलिडेटर। तो इसमें क्या है आपका, जैसे हमने 100-200 जीएसटी जितने भी थे हमने वो डाला, ठीक है। ठीक है, ये चैट बॉक्स में भी हमारे पास आ गया। तो अब इसमें हमें जीएसटी नंबर डालना है, जो हितेश जी एक्चुअली पूछे थे इसका स्टेटस। तो हमने ये कॉपी किया, सपोज हमने यहाँ पे 55 जीएसटीएन कॉपी किए, ठीक है, हमने कॉपी करके पेस्ट किया। नाउ चेक जीएसटी नंबर डालो। अब हमें ये जब डालेंगे तो इसका वैलिड है या इनवैलिड है ये तो ये अपफ्रंट बता देता है यहीं पर। ठीक है, जैसे आप देखोगे ना नीचे तो वैलिड वैलिड बता रहा है, ऑल नंबर था वैलिड, हमने ही वैलिड बोला था। अब इसमें ये एक्सेल फाइल आता है, ठीक है, लिमिटेड टू 500 GSTIN। आप ये एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। सपोज कि आपको 1000 का भी करना है तो एक्सेल फाइल सिर्फ 500 का ही बनेगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इशू है इस जेन जीएसटी में, बट 500 इज ऑल्सो गुड नंबर। डाउनलोड करना शुभम, डाउनलोड करके दिखाओ कि इसके अंदर क्या दिखाता है। तो ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर आपने जीएसटी नंबर नीचे डाला, ये यूआरएल है, आप नीचे डाला, डाउनलोड किया। ठीक है, अब डाउनलोड करके देखते हैं कि इसके अंदर कैसा रिपोर्ट आता है। अब यहाँ पे आपका जो डी नंबर कॉलम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका एक्टिव आ रहा है, फिल्टर आगे दिखाना क्या क्या होता है, एक्टिव और कैंसिलेशन। यहाँ पे आपका कैंसिल को वो फिल्टर आउट करना, तो ये हमें बता देगा कि आपका वो 55 में से ये 2 केसेस में कैंसिल जीएसटी आया है। एंड ये लास्ट चेक हुआ 16 जनवरी को, मतलब ये लेटेस्ट स्टेटस है, आज का स्टेटस है। ठीक है, तो इन दिस वे आप जो हितेश जी पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता चले किसी का एक्टिव कैंसिल्ड है या क्या है। ठीक है, तो अभी 500 जीएसटी वाला लिमिटेशन है हमारे पास कि हम 500 तक ही देख सकते हैं, बट उससे ज्यादा देखना हो तो आपको वो मल्टीपल रन करना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज आप थोड़ा देख लेना। तो ये हमारे जो थे, तो बल्क में कैसे जीएसटी वैलिड होता है तो ये हमने दिखाया। तो ठीक है, थैंक यू शुभम, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। हाउ टू चेक ट्रेड नेम एंड लीगल नेम इन बोथ जीएसटीआईएन एंड वैलिडेशन। तो आप है ना वहां देख सकते हो, जो आपका उसमें था जेन जीएसटी में, आई गेस उसमें ट्रेड नेम भी आता है ना, ट्रेड नेम एंड लीगल नेम दोनों आता है। तो दैट वी कैन सी। ओके, सो इन दिस वे लेट्स शेयर माय स्क्रीन। तो ये हमने देख लिया, अपने 706 एजेंडा पूरा देख लिया कि कैसे हम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ओपन क्वेरी सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके जो क्वेरी थे कि ये पेड है, पाइथन क्या है, जुपिटर नोटबुक हम कैसे कर सकते हैं, हम डाउनलोड कैसे करेंगे, एंड अगर किसी को नॉलेज नहीं है टेक का तो क्या वो भी सीख सकता है, ये है ना। एंड है कि ये सीए को सीखना बेनिफिशियल है या नहीं है। सबसे पहले तो बेनिफिशियल है या नहीं, आपने ये छोटे से हमारे वेबिनार में देख लिया होगा कि अगर कोई सीए ये छोटा सा ये 2-3 लाइन भी सीख लेता है, वो कुछ नहीं जानता पाइथन, कुछ भी नहीं जानता, उसने सिर्फ पाइथन डाउनलोड किया, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया, जिसमें आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। ये इंस्टॉल करके हम वो कोड दे देंगे आपको, कोड को अपने ऑफिस में सिर्फ कॉपी पेस्ट करके रन करो, आपका इतना काम तो आसान हो जाएगा। तो बेनिफिशियल है या नहीं है वो तो आप लोग डेफिनेटली खुद से देख सकते हो।
एंड ये कि कैन समवन विदाउट एनी टेक नॉलेज लर्न इट, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई वुड आस्क वैभव, आर यू देयर? हमारे साथ वैभव केजरीवाल इज एन आर्टिकल असिस्टेंट फॉर्म। तो वैभव, आई वुड वांट कि आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पाइथन सीखने का, एंड आपको क्या लगता है? So first of all, मैं वैभव आपका थोड़ा वॉइस में थोड़ा इश्यू आ रहा है वैभव, थोड़ा सा वो ब्रेकिंग। अभी मैं आर्टिकल असिस्टेंट नहीं हूँ, मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चालू कर लिया। सिचुएशन अराउंड हेलो हाँ नहीं अभी भी ठीक आ रहा है। नहीं अभी भी नहीं आ रहा वैभव। Some issues there at Vaibhav sent. Not an issue. Will come back to Vaibhav to you, है ना? तब तक एक बार शुभम आप एक बार बताओ कि आप आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन दिस कोडिंग जो आप सीख रहे हो एंड जो आपने यूज किया, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑन इट? जस्ट अ ब्रीफ 40 seconds to 1 minute. Yes, sir. First of all, thank you everyone for joining us today. I hope you had spent great time here. क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी वी हैड रनिंग ओवर टाइम। मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो अगर हम लोग सिर्फ पाइथन सीखने का कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि सीखने में, सिंस वी आर नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो हम लोग को थोड़ा परेशानी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा कुछ काम इससे आसान हो सकता है क्या, तो फिर हम लोग जरूर कुछ बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने इतना सारा फंक्शन देखा, ये सब हम लोगों को प्रैक्टिकली यूज करना था, इसके वजह से हम लोग देखे कि कैसे हो सकता है, और फिर वो ढूंढे, गूगल किए, और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, यूडोमी, ये सब पे चेक किए, तो हमारे पास ये सब पता चला और हम लोगों ने अपना कस्टमाइज करके प्रोग्राम सब बनाए, और फिर उसी को जैसे कि अभी सर मॉड्यूल बनाकर पब्लिकली ओपन सोर्स अवेलेबल कर चुके हैं, ओपन सोर्स कर चुके हैं इस चीज़ को। तो इससे हमारा भी मदद हुआ और फिर और आगे आप लोगों का भी मदद होगा और फाइनेंस फील्ड के अलग लोग समझ पाएंगे। हेलो हेलो यस राइट, नहीं ठीक है, आपका आवाज बीच में देखो बट ठीक था, तो ग्रेट। तो वही हमारा भी पर्पस ये है कि फाइनेंस के लोग भी मतलब टेक्नोलॉजी से अनछुए ना रहे ना, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी की बात आती है हम क्लियर टैक्स या जेन जीएसटी या कोई जीएसटी प्रोवाइडर या इधर उधर भागते हैं, या ऑनलाइन देखते हैं कौन सा टूल अवेलेबल है, सस्ते में कौन सा टूल है, या टैली ने कोई टूल बनाया है क्या, तो ये जरूरत ना पड़े यार हम खुद से ये बना पाए, है ना। तो द मोटो ऑफ द एफिशिएंट कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म का मोटो ही यही है, एनीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड एंड इट कैन बी ऑटोमेटेड बाय यू योरसेल्फ, ठीक है। सो लेट्स हियर फ्रॉम वैभव एज वेल। वैभव आप चेक करना आपकी एंड में टेक्निकल इश्यू अगर खत्म हो गई हो तो हम आपसे भी सुन ले थोड़ा। हेलो, हाँ अभी आ तो रहा है आपका आवाज, प्लीज। हाँ अभी आ रहा है। हेलो, यस आ रहा है। हाँ तो वही मैंने भी अराउंड लॉकडाउन में स्टार्ट किया ये आर्टिकलशिप, फिर साथ में चालू हुआ, मतलब आर्टिकलशिप से पहले ही थोड़ा चालू किया था, तो फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ और जब मैंने देखा कि आर्टिकलशिप फर्म में हमारे ऐसे ऐसे काम हो रहा है, मतलब मैनुअली हम लोग कॉपी पेस्ट करने बोल रहा है और मंथली डेटा को एक कंबाइन करने के लिए मैं हम लोग को मतलब 2-3 दिन दिया जा रहा है एक्सेल फाइल में, जो हार्डली मिनट्स में हो सकता है जैसा आपने दिखाया। तो मैंने मतलब एक बार के लिए शॉक हो गया था कि ये सब काम भी हम लोग को करना पड़ेगा आर्टिकलशिप में। जैसे एक बार मेरे सीनियर ने मेरे को बोलता है GSTR 3B का जो डेटा है वो एक्सेल में कॉपी पेस्ट करो, तो अराउंड उस कंपनी में अराउंड 15-20 GSTs थे, तो 180 PDF से कॉपी पेस्ट करते करते मेरा 2 हफ्ता 3 हफ्ता तो मेरे को पता है मेरे को लग ही जाता है अराउंड। तो मैंने उसी दिन रात को गया, रात को थोड़ा प्रैक्टिस किया, 2-3 दिन में एक तो कोड बनाया जिससे मेरा PDF का डेटा एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा जिस फॉर्मेट में मेरे को रिक्वायरमेंट है विद इन मिनट्स, जैसा कि आप अभी दिखाया अपने प्रेजेंटेशन में। तो वैसे ही मतलब हम लोग का इतना हेल्प हो सकता है अगर हम थोड़ा सा बेसिक्स भी सीख लेंगे और एक मतलब कोड कॉपी पेस्ट करने लायक भी और रन करने लायक भी अपने सिस्टम में, तो मतलब और आप तो है ही हम लोग को सिखाने के लिए, इतना हेल्प करने के लिए, तो उससे बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होगा मतलब। ग्रेट।
ओके, थैंक्स वैभव। तो वैभव ने ही मतलब खुद से एक टूल ऐसा बनाया है जिसमें अगर आपके पास GST 3D का PDF फाइल है 12 महीने का, वो PDF के अंदर जो डेटा रहता है ना कि इसका कितना आउटपुट लायबिलिटी कितना बना, RCM कितना बना, इनपुट कितना होता है, रिवर्स कितना हुआ, उन सबको हम एक्सेल फाइल में बदल सकते हैं। तो दैट वन टूल वैभव हैज मेड। तो इसलिए मतलब माई पर्पस ये रहता है कि हम लोग कम से कम इस एस्पेक्ट में सोचना शुरू करें, है ना, कि हम भी ये सोचे कम से कम कि हमारा काम ऑटोमेट हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट कोडिंग, ठीक है, कोडिंग तो बहुत बाद की बात है कि हम कोडिंग करेंगे। पहले हमारा काम है कि हम पहले होते कोडिंग, लोग यही पूछते हैं कि कोडिंग सीखना क्यों है। एक्सेल में हम अगर एडवांस एक्सेल सीख ले तो नहीं होगा क्या? पावर BI कर लेते हैं, पावर क्वेरी सीख लेते हैं, या थर्ड पार्टी ऐप यूज करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर मैं क्लियर टेक्स्ट यूज करूँ तो दिक्कत क्या है? द प्रॉब्लम इज कि दिक्कत कुछ नहीं है ना, कोडिंग सीखना भी नहीं है हमें शुरू में। तो दिस इज वन टास्क, मतलब ये आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि कोडिंग का रोल आता कहाँ पर है। सबसे पहला तो आता है कि हम पहले डिटरमिन करें कि क्या हमारे पास जस्ट पहले तो सॉरी दैट वी आर गोइंग अ बिट ओवरबोर्ड, थोड़ा लेट हो रहा है, बट स्टिल आई कवर ब्रीफली कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा टास्क है जो कि मंडेन या मोनोटोनस है। सपोज कि आपका एक CA फॉर्म है, वहां पे आप क्लाइंट को एडवाइस देते हो, आप GST लॉ को इंटरप्रेट करते हो या इनकम टैक्स को इंटरप्रेट करते हो, DRP या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उस सब में आप दिमाग लगा के एडवाइस देते हो। इसमें आपका कोई मोनोटोनस काम नहीं है, ठीक है, आप अपना इंटेलेक्ट यूज कर रहे हो, CA का नॉलेज यूज कर रहे हो, काम दे रहे हो। तो ये सब टास्क अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए तो पाइथन या कोडिंग जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इज योर प्योरली एनालिटिकल पार्ट एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। पर अगर आपके पास अपने ऑफिस में कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है इसमें CA का क्या जरूरत है, तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट है या ये तो कंबाइनिंग है, इसमें तो दिमाग लगाना, ये लॉजिकल बेस्ड है कि अगर ये तो ये तो ये, अगर आपका इनवॉइस नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है तो मैच मान लो, नहीं है तो बस unmatch एक और मान दे लो, देना, ठीक है ना। बस एक और तो इस हिसाब से फोन दे। ओके, इस हिसाब से आप है पहले आप टास्क डिटरमिन करो कि डू यू हैव सम मंडेन टास्क। अगर है देन यू गो टू स्टेप 2, डू सम रिसर्च। सीधा कोडिंग में नहीं आना है, डू सम रिसर्च कि क्या पता एक्सेल में ही कोई टूल हो या एड इन हो जिसके थ्रू हमारा काम हो पाए, या मैक्रो फाइल बना हुआ हो किसी का ऑलरेडी। तो दिस थिंग कैन बी डन। यूजुअली आई डोंट प्रिफर कि आप कोई पेड एक्सेल एड इन यूज करो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। सो कोई फ्रीली अवेलेबल है दैट यू कैन डू। अगर एक्सेल में नहीं है देन यू गो टू द थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज यूज थर्ड पार्टी एप्स। कोई थर्ड पार्टी एप्स यूज करके क्या आपका काम हो सकता है विच इज फ्रीली अवेलेबल, क्या इससे करने से होगा? सो दैट इज यू हैव टू एनालाइज 1 2। तो 1 2 3 यहाँ तक ही आपके मेजर काम हो सकते हैं कि ऑटोमेट हो जाए, ठीक है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐप। बट आप लुक फॉर फ्रीली अवेलेबल थर्ड पार्टी ऐप, ठीक है, जिसमें पेड हो, उस पर हमें नहीं जाना है अभी। थर्ड पार्टी ऐप ये कर लिया। सपोज इतना नहीं है देन यू गो टू द फोर्थ पार्ट विच इज यूजिंग द कोड या मॉड्यूल्स रिटन बाय अदर्स। जो बाकी ने मॉड्यूल बनाया है, जैसे अभी हमने देखा ये सब एफकॉर्प GST मॉड्यूल हमारे एक्सचेंज कॉर्पोरेट के प्लेटफॉर्म से ही निकल के आया है, ठीक है। सो दिस थिंग ऑलरेडी बन चुका है, तो आप ये मॉड्यूल को कॉपी पेस्ट करो, मतलब कोड को कॉपी पेस्ट करो। तो दो लाइन का कोड हमने लिखा है, कॉपी पेस्ट करके यूज करना सीखो पहले। तो पहले आपने यहाँ पे किया जहाँ पे आपने कोड को रन करना आपको आ गया। ये सब करने के बाद भी सपोज एक ऐसा काम है जो आप करना चाहते हो एंड आपका उसके लिए कोड भी अवेलेबल नहीं है। सपोज मैंने बोला कि आपका जो रिकंसिलिएशन हो गया, उसके बाद आपका ITR बच गया, अब आपका दिख गया कि इन सब सप्लायर्स ने फाइल नहीं किया है। नाउ आपको क्या करना है, अब आप चाहते हो कि सबको मैं इंडिविजुअली मेल भेज दूं, बल्क ईमेल टू ऑल द वेंडर्स जिसने फाइल नहीं किया है। तो इसका आप देखोगे कैसे कोड आ सकता है या कैसे मैं इस चीज को ऑटोमेट करूं विदाउट यूजिंग एनी पेड एप्लीकेशन। तो दैट इज वेयर यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन कोड, ठीक है। ये सब आपको ये फिफ्थ वाले पोजीशन में आने के लिए आपको पहले वो बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा, एंड वो बेसिक नॉलेज डेवलप करने के लिए ही द प्लेटफॉर्म इज देयर, द एफिशिएंट कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो दैट इज देयर। एंड ये जो मैंने बोला वो बल्क ईमेल वाला, वो भी हमने मॉड्यूल बना रखा है, एंड दैट वंस यू गेट इन टच वी कैन से दैट एज वेल, ठीक है। तो ऐसे आपका ये 1 2 3 4 5 है, ठीक है। 1 से सीधा 5 में नहीं जाना अपने को, 1 2 3 4 5 आपको ये पाथ फॉलो करके ही 5 में आना है। आई वोंट से कि जो काम सुई से हो सकता है उसको तलवार से नहीं करना चाहिए। सेम थिंग फॉर कोडिंग एज वेल। जो छोटा सा अगर कोई ऐप या कोई एक्सेल के फॉर्मूला से हो सकता है, उसके लिए हम कोडिंग में क्यों जाए, तो हमारा एक्सेल में हो सकता है। तो दैट इज वन थिंग व्हिच यू हैव टू नो। सो ये चीज है, एंड कोडिंग में रेफर करता है लाइक अ स्विस नाइफ। जैसे पॉकेट में अगर स्विस नाइफ हो तो वो सीजर का काम भी करता है, ओपनर का काम, बहुत सारे काम करता है ना। वैसे पाइथन एक ऐसे टूल है या कोडिंग एक ऐसा ही टूल है जिसका आपको बल्क ईमेल भेजना हो, एक्सेल को स्प्लिट करना हो, PDF कंबाइन करना हो, या मल्टीपल 100-200 PDF में स्प्लिट करना हो कि एक PDF फाइल में 1000 पेजेस है, आप चाहते हो 2-2 पेज करके स्प्लिट हो जाए। तो ये सब आपके छोटे मोटे काम आपके सब कोडिंग से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सीखना जरूरी है। एंड पाइथन में हम क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है एंड इट्स द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ऑफ नाउ।
C++, जावा, ये सब इसके बाद आते हैं। आजकल काफी फेमस हो रहा है क्योंकि इट्स वेरी इजी टू लर्न। एंड जावा में जैसे हम एक थोड़ा एग्जांपल देते हैं कि जावा में अगर प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी करना है, जावा में 5 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है एंड काफी टेक्निकल सा लगता है कि पब्लिक क्लास हेलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, तो वो सब थोड़ा टेक्निकल है। बस पाइथन आप देखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड सीधा लिख दिया, काम खत्म। तो इसलिए पाइथन इज वेरी इजी। एंड मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि पाइथन को लर्न करना 1.5 साल से, जैसे आई एम वर्किंग ऑन पाइथन, बट आई फील दैट इट्स नॉट इवन लर्निंग लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लगता है कि हम इंग्लिश ही सीख रहे हैं, टूटा फूटा इंग्लिश में ही कोड लिखना जैसा है। आप अगर कभी भी वी विल शेयर द कोडिंग मटेरियल, आप देखोगे तो इतना इजी है लर्न करने, लगता है कि हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, कंप्यूटर को बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। इस हिसाब से वेरी इजी एंड दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस। एंड मेरे को तो लगता है कि जो इनिशिएटिव बहुत लोगों ने ले रखा है, जैसे कि वैभव ने अपना एक TDS का भी सॉफ्टवेयर बना रखा है, या अपना GST 3D का कोई टूल बना रखा है, बट दीज ऑल आर नॉट शेयर्ड विद ईच अदर, है ना। हम लोग काफी एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑटोमेशन की बात करें, इसलिए बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड है। एंड एक बार हम अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म में डिस्कस करें कि अपनी क्यों GST तो एक ऐसा चीज है तो सब लोग कर रहे हैं ना, अगर ये टूल एक बना देगा तो सबके लिए हेल्पफुल होगा वो। एंड अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो टूल में आप इनहेंसमेंट भी कर सकते हैं। एंड सिंस ये अपना टूल है, इट विल ऑलवेज बी रिमेन फ्री, क्योंकि कभी भी ये चार्जेबल नहीं बना है, क्योंकि ये सब कम्युनिटी ने बनाया है इस टूल को, ठीक है। सो इन दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक कम्युनिटी से जुड़ के अपना प्रॉब्लम्स को शेयर करके अपना कोई टूल को बनाने में या लर्निंग में इन्वेस्टमेंट करें एंड अपने को टूल बनाए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कम्युनिकेट करो एंड हमेशा स्टे इंक्विजिटिव, कि ना कोई भी चीज ऑटोमेट हो सकता है, या जो अगर हो सकता है कोई काम को आप 10 साल से एक फॉर्म में आप इस तरीके से करते आए हो, बट आप एक बार स्टेप बैक एंड आस्क योरसेल्फ, कैन दिस बी ऑटोमेटेड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। इट विल कीप यू मोटिवेटेड एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू लर्न एंड ग्रो। तो इसके लिए डिस्कॉर्ड सर्वर का जो मैं बात कर रहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिस्कॉर्ड सर्वर इज एन एडवांस वर्जन ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। अब मैं थोड़ा दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है या क्या है ये। ओके, तो ये आपका जैसे कि व्हाट्सएप अलग अलग ग्रुप होते हैं ना, जैसे मेरे पास ये पर्सनल फाइनेंस का एक ग्रुप है, अकाउंटिंग का एक ग्रुप है, वैसे एक एफिशिएंट कॉर्पोरेट का एक ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल सब चैनल्स बने हुए हैं। तो जैसे ये एरर का क्वेरीज का है, तो किसी को भी कोई एरर आता है तो बताते हैं देखो मेरे को ये एरर आ रहा था, कैसे सॉल्व होगा। तो पीपल कैन से कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। किसी को अगर ये है कि हमें ना इस चीज को कैसे कर सकते हैं, तो देयर आर मल्टीपल चैनल्स फॉर दैट। किसी को कोई न्यू ऑटोमेशन आइडियाज है, आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मेरे को ये ऑटोमेट करना है, कैसे करें। कोई भी अपडेट्स आएंगे देन दिस विल बी हियर, जैसे भी वेबिनार होना था तो ये वेबिनार वगैरह का अपडेट आता है, तो ऐसे आपका डिस्कॉर्ड में रेगुलर अपडेट होता रहेगा। एंड डिस्कॉर्ड इज द फ्यूचर ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, ये आपका फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है एंड इट इज मोर पावरफुल देन व्हाट्सएप ग्रुप। एंड हाँ, तो यही है आपका। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड की जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इवन इन योर फॉर्म whatever works you have been doing, and इसके लिए आपको resources, the best resources are the article assistant who are working in your firm, or if you are a student you yourself can invest some time to learn this। तो आपके आर्टिकल्स को आप उसको उसको अपस्किल करने में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करवाओ, उनको बोलो कि आप थोड़ा सा ओके हाँ, अपने उनको बोले कि वो लोग सीखे इन सब के बारे में, एंड आपको मतलब उनका भी एक स्किल लर्निंग होगा, एंड आपको वो लोग ऑफिस में भी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस मच वाज फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग व्हाई वी ऑल शुड बी थिंकिंग अबाउट ऑटोमेशन एंड ये सब ऑटोमेशन के टूल्स वगैरह। एंड मैं एक बस अपना आई विल शेयर माय स्क्रीन कि आप लोग ये सब जो हमने बताया आप कहाँ आपको मिल सकता है। एक तो कि जो ये सेशन हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग वी विल बी गिविंग, है ना। एंड बाकी जो भी हमने टूल्स बताए हैं, मोस्ट ऑफ देम टूल्स हमने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है। You can just simply type efficient corporate and you can go, and यहाँ पे आप देखोगे तो JSON to Excel converter ऑलरेडी टूल्स आर देयर, ठीक है। अब सबसे पहले तो कि आपको पाइथन और जुपिटर नोटबुक का बेसिक ही जानना है कि ये क्या होता है। तो आप इसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपके पास यहाँ पे ये पाइथन ट्यूटोरियल फॉर फाइनेंस है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट के अंदर आपका काम हो सकता है। आप यहाँ पे 1 2 3 4 करके यू कैन गो फॉर एनी वीडियो, आपका देखोगे तो एकदम बेसिक से बताया हुआ है कि आपका पाइथन होता क्या है, क्यों करना चाहिए, एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, है ना। इन दैट वे एक मिनट, हाँ, तो उस हिसाब से यू कैन गो एंड यू कैन लर्न। आपका 1 2 3 4 जो ये पहला 4 वीडियो है, इसमें आपको जुपिटर नोटबुक और पाइथन के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे आप उसको इंस्टॉल करके रन कर सकते हो कोई भी कोड। एंड जो हमने आज कोड सब बताया है वो तो आपको चैनल्स में मिल जाएगा कोई वीडियो के फॉर्म में। आप यहाँ देखोगे तो ये आपका GST टू परचेज रजिस्टर
जेसन कन्वर्टर, ये सब का वीडियो बना हुआ है एंड वी विल बी पोस्टिंग, ये वीडियो और भी आते रहेगा। एंड व्हाट माय थिंग इज दैट ये आप जो एज आई सेड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट एफिशिएंट कॉर्पोरेट इज अ प्लेटफॉर्म टू लर्न, बिल्ड एंड शेयर। तो यहाँ से आप सीख तो सकते हो थ्रू वेरियस मटेरियल्स, you can build your own tool, plus you should also try to share your automation tool। अगर आपने भी अपने ऑफिस में कुछ ऐसा कोई छोटा कोड बनाया, जैसे वैभव ने बनाया, he will be loving to share what he has made, वैसे ही बाकी लोग भी अगर आपने कुछ बनाया है then always feel free to share। and अगर आपको वीडियो भी बना के अपडेट करना है, you want to upload in this channel, it's an open platform for everyone। तो आप भी इस चैनल में अपने वीडियो बना के या अपने टूल के बारे में बता के you can simply upload, ताकि the entire community get benefited। and we focus not only on CA profession but any working professionals जो कि अपने काम को easy करना चाहते हैं। so in that way these were the things I wanted to share। and we will be like ये सेशन के बाद एक फीडबैक फॉर्म जाएगा and you can just mention कि whether the session was beneficial for you or not। and आपको अगर ऐसे सेशन या कोई specific topic में you want a session to happen, you can get in touch with Sumit sir or with me, or you can come with our website as well। आप वो वेबसाइट में भी आप मतलब अपना शेयर कर सकते हो for anything to efficientcorporate.in, ये वेबसाइट का लिंक है। तो here you will get about the things कि क्या टूल्स वगैरह है, what are how you can contact us। एंड ब्लॉग में आपको काफी आर्टिकल्स वगैरह वी यूजुअली कम एंड पोस्ट द आर्टिकल्स कि क्या क्या मतलब इन द वे हाउ यू कैन लर्न कि ना कोई भी ऑटोमेशन बनना है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, पाइथन फाइनेंस प्रोफेशनल्स शुड लर्न कोडिंग और नॉट। इन दिस वे सम आर्टिकल्स आर देयर दैट यू कैन सी। सो दीज आर द रिसोर्सेज व्हिच आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू। एंड हाँ, जैसे आज आप देखोगे सबको व्हाट्सएप में एक मैसेज गया था या सबको एक मेल जा रहा था बल्क में, राइट। So all those tools we have made using Python only। हमने कोई पेड ऐप या थर्ड पार्टी ऐप नहीं यूज किया। आपका व्हाट्सएप का डीएम हो या सबको बल्क में, जैसे there were 200 people who registered for the webinar, but we have to send mails to all those 200 people कि आपका ये लिंक है या ये रिसोर्सेज आप इसको पढ़ना। So all those things we did using Python only। and there are tools available। या सबको व्हाट्सएप में मैसेज भेजना, you all must have got a message in WhatsApp, तो वो सबको गया है। तो वो कैसे गया, there was no कोई बैठ के भेज नहीं रहा था, हमने प्रोग्राम बेस्ड अवेलेबल है, वो प्रोग्राम यूज करके हमने सब कुछ किया। इन दैट वे ऑल ऑफ यू कैन बी बेनिफिटेड यूजिंग दिस पाइथन थिंग एंड ऑटोमेशन थिंग। द थिंग इज दैट वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्फ कि हम कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अगर कोई और भी, अगर समवन हैज बिफोर वर्कड ऑन पाइथन एंड ही वांट्स टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, या किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है, देन इट्स एन ओपन फोरम एंड दे कैन आस्क व्हाटएवर दे वांट। Okay, let me see if there is someone has few questions. This code will be available to everyone on the Google Drive। We will be, इसके बाद हम एक मेल भेजेंगे to all the participants and everyone। तो उसमें आप वो कर सकते हो कि ना they will get the code, है ना। In that way you can get there। ठीक है। So if no one has any questions, so ठीक है। So Sumit sir, are you there? Yes, Pranav ji, I think you have wonderful discussion, and I am thankful to you for your such deliberation, and will plan such more programs in future as well। So thank you very much to each one of you for joining। Okay, thank you everyone, thanks for joining and giving us your time। Thank you। So okay।